Okay, good evening, everyone. Welcome back to one more class. So, as I have been informed, there is one topic remaining, that was the magnetotelluric surveys in mineral exploration part, right? So, आपने अभी तक बहुत सारी जियोफिजिकल प्रोस्पेक्टिंग की मेथड्स देखी, राइट? जियोफिजिकल प्रोस्पेक्टिंग या फिर जियोफिजिकल एक्सप्लोरेशन की हमने बहुत सारी मेथड्स देखी. कैन यू टेल मी व्हाट इज पैसिव एंड व्हाट इज एक्टिव मेथड? Right. See, whenever you are doing some geophysical experiment, okay, or exploration for which you need to send some type of signals. For an example, if you are doing seismic survey, okay, if you are doing a seismic survey, so in that case, if you are using the earthquake waves, naturally occurring earthquake waves, then that will become the passive way, okay, or the passive method. Okay, or you can generate the seismic wave by some hammering processes or some jackhammer type of processes, and then those will be the active type of exploration. Okay, or we say active source. Okay, similarly when you are doing the electrical resistivity surveys, okay, those are mostly the active methods, right? You have to send the electrical signals into the earth and wait for them to be received at the another electrode, right? So that is the active method. Okay, similarly there are some passive methods where we do not give our own signal, जिसमें हम अपने तरफ से सिग्नल्स को अर्थ के अंदर में इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे. So what will we do? We will use the same signals which are generated by the earth itself. जो अर्थ के अंदर में एग्जिस्टिंग है उन्हीं को यूज करेंगे. ओके, सो हमने बहुत सारी मेथड्स देखी है, लाइक हमने देखी है साइस्मिक मेथड, ओके, विच कैन बी एक्टिव एंड पैसिव बोथ, राइट? वी हैव यूज electrical resistivity method, right? This can also be active, this can also be passive, right? Which can also be active, which can also be passive. We have used the magnetic method, right? Which is obviously always passive. Okay, similarly we have used the gravity methods, right? Those are also passive method. So we come to one last geophysical prospecting method, that is called as the MT survey or magnetotelluric survey, okay, which is basically a passive source, okay, which uses basically the passive source. So first of all, let's understand what is the magnetotelluric method. Okay, so as the name indicates, magneto uses the magnetic properties, and telluric, the word telluric means electrical. Okay, so this is nothing but electromagnetic method. Okay, so this magnetotelluric survey is nothing but magnetic plus electrical survey, and this is a passive method, जिसका मतलब है कि हम इसमें ना तो मैग्नेटिक करंट कोई फील्ड इंड्यूस करने वाले हैं और ना ही कोई इलेक्ट्रिक करंट देने वाले हैं. सो हम क्या करने वाले हैं? हम क्या करेंगे, हम अर्थ के अंदर का जो एम्बियंट मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, जो अर्थ का अपना मैग्नेटिक फील्ड है उसे हम सेंस करेंगे. ऑल्सो अर्थ के अंदर में जो इलेक्ट्रिक करंट्स डेवलप होते हैं उन्हें हम सेंस करने वाले हैं. So this is totally passive method. We are not introducing any signal, neither magnetic nor electrical. Okay. Now, you must have heard about the electromagnetic induction, right? The laws of electromagnetic induction. Let's say this is B. Okay. So obviously, you know, H will be here, right? We know that the magnetic field, okay, we would say the varying magnetic field generates an electric field, and vice versa. मतलब varying electric field in turn generates the
मैग्नेटिक फील्ड। मतलब अगर मेरे पास एक कॉइल है, ओके, एंड लेट्स से दिस आई एम कनेक्टिंग दिस टू अ बैटरी, ओके, सो व्हेन दिस when the circuit is closed, what is going to happen? The electric current will flow. Okay, now here, no, if I put a magnet, okay, if I put a magnet here very close to the coil, I will find that my magnet will show some deflection. Okay, my magnet will show some deflection, जिसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता हूं, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। ओके, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड में से अगर मैं कोई मैग्नेटिक मटेरियल मूव करता हूं, स्पेसिफिकली फेरोमैग्नेटिक, इन सम केसेस पैरामैग्नेटिक, अगर कोई पैरामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में मूव करता हूं, देन आई रियलाइज दैट अ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज जनरेटेड। सिमिलरली आई कैन डू एन ऑपोजिट एक्सपेरिमेंट, आई कैन डू एन ऑपोजिट एक्सपेरिमेंट। यहां पर मैं एक वोल्ट मीटर लगा देता हूं, ओके, वोल्ट मीटर विच कैन नोट द इलेक्ट्रिक करंट, voltage, electric voltage. Okay, now let's say this is a magnet. Okay, let's say this is a magnet. Let's write north and south so that it becomes very easy. Okay, if this is a magnet and moving the magnet through this coil, okay, if I'm moving the magnet through this coil, you will observe that the voltmeter is showing some reading. और वोल्टमीटर रीडिंग कब दिखाएगा? जब उसमें वोल्टेज डेवलप हुआ। वोल्टेज डेवलप हुआ इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट डेवलप हुआ। ओके, सो आपने कोई बैटरी नहीं लगाई है सर्किट में, ठीक है, ना कोई इसमें एसी सोर्स दिया है ना कोई डीसी सोर्स दिया है, बट स्टिल वोल्ट मीटर में इलेक्ट्रिक करंट नोट होगा। तो ये कहां से आया? तो जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है, विच इज कॉल्ड एज द वेरिंग फ्लक्स ऑफ मैग्नेट, वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, ओके, सो व्हेन अ कॉइल मूव्स थ्रू अ वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जनरेटेड, मतलब इलेक्ट्रिक करंट इज जनरेटेड। दिस इज कॉल्ड एज द फैराडेज law of electromagnetic induction. Okay, electromagnetic induction. Okay, very simple process, right? अब इसका हमें यूज करना है, ऑब्वियसली हमें और भी बहुत सारी चीजें रहेगी, मैक्सवेल्स इक्वेशन रहेगा, मैक्सवेल्स लॉ वैलिड होना चाहिए। ओके, ये तो हमने बचपन में पढ़ा हुआ होता है, राइट? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, अगर मैग्नेटिक फील्ड आप चेंज करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। दैट इज द रीजन दैट यू गेट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ होल अर्थ, राइट? डायनामो इफेक्ट यही है, राइट? नाउ नाउ बैड कलर, लेट्स से दिस इज द प्लैनेट अर्थ, let's say this is the planet earth, okay, and in this planet earth, okay, we know that we are having some magnetic field, right? We have the magnetic field like this, fine, हमारा मैग्नेटिक फील्ड ऐसा जाता है, राइट, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ओके, सो अर्थ इज ऑलरेडी हैविंग मैग्नेटिक फील्ड, लेट्स से m, okay, let's say m. Now for let's say there is some rock here, okay, very close to the crust, वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ, ओके, अर्थ के सरफेस के पास में एक ये हमारे पास एक रॉक बॉडी है, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस दैट यू नो दैट देयर आर डाययूरनल चेंजेस इन मैग्नेटिक फील्ड, राइट? जो डे वाइज चेंजेस आते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, माइनर चेंजेस होते हैं, ओके, राइट? सो बिकॉज ऑफ स्लाइट चेंजेस इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ में छोटे मोटे जो चेंजेस आते हैं, उस चेंजेस की वजह से अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, राइट? सो अर्थ के अंदर में बहुत सारे इलेक्ट्रिक करंट्स ऐसे ही फ्लो हो रहे होते हैं, ओके, जिसे हम बी से रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। बहुत सारे इलेक्ट्रिक करंट्स अर्थ के अंदर में फ्लो हो रहे होते हैं। ये इलेक्ट्रिक करंट्स कहां से आए? कहीं से नहीं आए, ओनली बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन।
ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि अर्थ की कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है, ऑब्वियसली दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ वेरी स्मॉल, ऑलमोस्ट 0.01 टेस्ला के आसपास में चेंज होती रहेगी, राइट? बिकॉज ऑफ दैट सम इलेक्ट्रिक करंट्स आर मूविंग। ओके, नाउ इन इलेक्ट्रिक करंट्स की इंटेंसिटी कैसे कैसे चेंज होगी, ठीक है, इसे हमें समझना पड़ेगा, राइट? क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? एक ही है, द ओनली मेजर पॉसिबिलिटी ऑफ चेंजिंग द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मूविंग इनसाइड द अर्थ इज चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड, राइट? अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करता हूं तो ये इलेक्ट्रिक करंट का इंटेंसिटी भी कम या ज्यादा होगा, राइट? सो अर्थ के अंदर वन इज योर एम्बियंट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, जो अर्थ का अपना मैग्नेटिज्म है। सो लेट्स से दैट इज द एम्बियंट मैग्नेटिज्म। इसके अलावा अर्थ में मैग्नेटिज्म कहाँ से चेंज हो सकता है? वेन एवर देयर इज लाइटनिंग, ओके, जब बिजली कड़कती है तब इमीडिएटली वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फोर्सेस वहां पे एक्ट करते हैं, राइट? तो लाइटनिंग की वजह से आपको अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस मिल सकते हैं। थर्डली, जो सोलार विंड आती है, ओके, इसको लिखते हैं डिस्टरबेंस इन सोलार विंड्स, राइट? ये जो दो चीजें हैं इनकी वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड में बहुत मेजर चेंजेस आ सकते हैं लोकली, ठीक है, लोकली। मतलब अगर लेट से ऑरेंज कलर से दिखाता हूं, अगर इस एरिया में अगर लाइटनिंग स्ट्राइक होता है तो यू डू नॉट एक्सपेक्ट मैग्नेटिक फील्ड टू बी चेंजिंग इन अनदर एरिया, दूसरे कंट्री में नहीं फील होगा, उसी एरिया में फील होगा। तो इस एरिया में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड सडनली बहुत ज्यादा चेंज हो रही है। सो एज अ रिजल्ट ऑफ चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स यू विल गेट चेंजिंग और हायर इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट्स, ओके, इलेक्ट्रिक करंट्स आपको यहाँ पे जनरेट होगा। सो this magnetotelluric method this uses this principle, okay, magnetic EMT survey, okay, magnetotelluric survey uses the principle of Faraday's law of electromagnetic induction and diurnal changes or the sporadic changes in the magnetic field of earth, okay? So इसका experimental setup कैसा होगा? Okay, if this is the ground surface, okay, if this is the ground surface, if this is my ground surface, what we will do, जनरली एक अबाउट 60 सेंटीमीटर का एक होल बना के इसमें हम एक, जस्ट ए सेकंड, निघा इथून नुसती मस्ती सकाळपासूनची, सॉरी, ओके, दिस इज द मैग्नेटोमीटर, ओके, दिस इज द मैग्नेटोमीटर, जनरली प्रोटॉन मैग्नेटोमीटर एंड फ्लक्स गेट वगैरह यूज होता है सर तिकडे, ओके, दिस इज द मैग्नेटोमीटर। नाउ फ्रॉम दिस मैग्नेटोमीटर जनरली एट 50 मीटर और 25 मीटर इंटरवल डिपेंडिंग ऑन आपको कितनी डेप्थ में जाना है, ठीक है, आपको शैलो वो डेप्थ में देखना है या डीप में जाना है। जनरली हम फ्यू मीटर से लेकर ऑलमोस्ट 10,000 मीटर्स तक का डेटा हम एमटी सर्वे से बहुत अच्छे से ले सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन हमें कितने डेप्थ का डेटा चाहिए है, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अपने इलेक्ट्रोड्स का असेंबली सेटअप करेंगे। अब ये इलेक्ट्रोड का असेंबली कैसे रहेगा, दो हम लगाएंगे नॉर्थ साउथ एंड दो हम लगाएंगे ईस्ट वेस्ट। नाउ कैन यू टेल मी व्हाई वुड आई बी डूइंग लाइक दिस? परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में हम क्यों सेट करेंगे? दो इलेक्ट्रोड्स हम यहाँ लगाते हैं, दो इलेक्ट्रोड्स हम उसके परपेंडिकुलर में लगाते हैं। ऑल डिस्टेंसेस आर सेम, हाँ, सारे डिस्टेंसेस सेम है। दिस इज लेट्स से 25 मीटर्स, ओके, देन ऑल द डिस्टेंसेस आर 25 मीटर ओनली, एवरीवेयर इट विल बी 25 मीटर्स। कैन यू टेल मी ये हम परपेंडिकुलर में क्यों सेटअप करते हैं? नो, just a second. I might have a picture. Do we have?
No, छोड़ो. Whenever, according to the Faraday's law of electromagnetic induction, always there will be generation of two fields, magnetic and electric field, and the direction of the fields are always perpendicular to each other. This is called as the orthogonal fields, right? Orthogonal fields. So if this is the direction of magnetic flux, then this will be the direction of electric flux. Okay. If this is the direction of magnetic flux, then this will be the direction of इलेक्ट्रिक फ्लक्स. ओके, सो हम इसीलिए परपेंडिकुलर सेट यहाँ पे करते हैं, सो दैट मुझे दोनों डायरेक्शंस का डेटा मिल पाएगा. अब ऑब्वियसली इतना ही नहीं रहेगा, ये ऐसा सेटअप रहेगा बेसिकली. बहुत बड़े एरिया में ये काम किया जाता है, डिपेंडिंग ऑन आपको कितना डेप्थ चाहिए है. ठीक है. सो दिस इज योर सेंटर में एक मैग्नेटोमीटर हमने सेट किया हुआ है. ठीक है. एंड यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रोड्स हमने सेट किए हुए हैं. नाउ ऑल द इलेक्ट्रोड्स, okay, all these electrodes will obviously be connected to a central voltmeter. Okay, these will be connected to the central voltmeter. hmm इन सबको हम अटैच करेंगे एक सेंट्रल वोल्टमीटर के साथ. क्यों करेंगे? बिकॉज हमको इलेक्ट्रिक करंट का भी तो वैल्यू चाहिए, राइट? सो यहां से सेंटर में हमने एम रखा है, वहां से मुझे मैग्नेटिक फील्ड का डेटा मिलेगा. ओके. एंड वी जो है मेरा वोल्ट मीटर, यहाँ से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का डेटा मिलेगा. नाउ कंप्यूटर कैन मॉडल these इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सिग्नल्स इनटू द थ्री डायमेंशनल फिगर्स. Okay, into the three dimensional block diagrams, on the basis of which you can analyze the areas of low and high resistivity. ठीक है. On the basis of which you will be able to resolve between the areas of high and low magnetic इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटीज. ओके. इसके लिए हम एक काम कर सकते हैं, 2 मिनट का एक छोटा सा वीडियो हम इसके लिए देख सकते हैं. ओके, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आई प्ले द वीडियो फॉर यू. इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. इससे आपका एमटी सर्वे का पूरा कॉन्सेप्ट भी एकदम इजीली एंड बहुत कंफर्टेबली कंप्लीट आप समझ पाएंगे. जस्ट एक सेकेंड और. ए, क्या चीज? कौन चीज? हमरा तो जयबो नहीं किए थे ना. सुबह तो यहाँ ना बैठल है, गई है नहीं तो. अखन तो 7:30 तो हो गए. अबर तो बंद नहीं, अभी खुला नहीं खे. 7:30 हो गए अब खुला नहीं खे रहता. हाँ, तो बोलो कोई नेनुआ कद्दू उद्दू किसी तो देख लो. हमरा तो ये कोई बताई भी नहीं किया था ना, एकर के लाने तो हम नहीं किए. तो कहा सही ले तो अब काची करेगा. Just see this video once.
सी दिस empty surveys, they will be only generating data like this. Okay, आपको बस कुछ graphical representation मिलेगा. Okay, this is a representative. Okay, just the representation of that. Okay, and final outcome is this. Okay, final outcome is this. After doing a very rigorous, अच्छा एक चीज इसमें आपको अच्छे से समझनी पड़ेगी कि एम्प्टी सर्वे के लिए जो आप इलेक्ट्रोड्स रखते हैं, दोज आर टू बी केप्ट देयर फॉर एटलीस्ट 24 आवर्स. 24 घंटे के लिए आपको वहां पे इलेक्ट्रोड्स का सेटअप लगाना है, चले जाना है घर, उसको छोड़ देना है. यू कैन नॉट टेक देम आउट ओनली इन फ्यू मिनट्स. ओके, जनरली 24 आवर्स दिए जाते हैं सो दैट डायurnal चेंजेस जो है मैग्नेटिक फील्ड में, उनका अकाउंट हो सके. ठीक है. अदरवाइज किसी छोटी मोटी चेंज से, या फिर अगर आसपास में कोई अगर एक बड़ा सा पावर लाइन जा रहा है, या फिर कोई रेलवे लाइन है जिसकी वजह से, या फिर कोई इंडस्ट्री है, या फिर कोई माइन है, तो उनकी वजह से चेंजेस आपको डेटा में बहुत मेजर नॉइज मिल सकता है. ओके, तो नॉइज आइडेंटिफाई करने के लिए कम से कम 24 आवर्स का हम टाइम उसमें देते हैं. ठीक है. नाउ अच्छा, I cannot annotate here in the during the video. अच्छा, so what you can see is something is green, something is yellow, then there is blue and there is red. So red is indicating in this particular case. Let's see what they have used. Okay, I guess they have used the high conductivity. Okay, तो ये तो इंडेक्स चेंज होगा आपके हिसाब से, राइट. सो these red areas are the high conductivity areas. Okay, अब कंडक्टिविटी किसी रॉक में कब बढ़ेगी, राइट. कंडक्टिविटी किसी रॉक में कब बढ़ेगी? फर्स्ट इज पॉसिबली वहां पे ग्राउंड वाटर का प्रेजेंस होगा, राइट, तब उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ सकता है. सेकेंडली, वहां पे कुछ मेटल्स हो सकते हैं, मिनरलाइजेशन हो सकता है, कॉपर, लेड, जिंक हो सकता है, आयरन हो सकता है, मैंगनीज हो सकता है, राइट, टाइटेनियम, वैनेडियम ज्यादा हो सकता है. तो वहां पे आपको हाई कंडक्टिविटी मिल रहा है, इसका मतलब वहां पे आइदर ग्राउंड वाटर और मिनरलाइजेशन दोनों में से कुछ एक होगा. सिमिलरली इसमें जो ब्लू कलर रहेगा, जनरली इसका ग्रेडियंट हम रेड से ब्लू या फिर ब्लू से रेड लेते हैं. तो ये ब्लू इज, इफ रेड इज हाई, देन नेचुरली द ब्लू बिकम्स लो वन. ओके, नाउ एज वी, जैसे हम वीडियो में आगे देखेंगे, नाउ दे विल बी स्लाइसिंग इट. ओके, टोमोग्राफी जैसे करते, साइस्मिक टोमोग्राफी जैसे करते, वैसे एम्प्टी टोमोग्राफी अब ये करेंगे, स्लाइसेस निकालते जाएंगे एंड यू सी इट slowly. There will be each and every slice will be removed. See. Okay, now एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर में वर्टिकली नीचे देखा जाने से कंडक्टिविटी का क्या वेरिएशन रहेगा वो आपको इस डायग्राम में दिखेगा, राइट. सो यहाँ पे जहाँ ब्लू कलर दिखा रहा है वहां पे एनामोलस लो कंडक्टिविटी है. इसका मतलब आइदर यहाँ पे कोई एक हार्ड मैसिव रॉक हो सकता है, ग्रेनाइट, बसाल्ट जैसा हो सकता है, या फिर मिनरलाइजेशन फ्री एरिया है. ठीक है. सिमिलरली आप उसी सेक्शन में आप नीचे देख रहे हैं कि एक रेड कलर का एक बड़ा सा एक कॉन्टूर बन रहा है, राइट, कलर कॉन्टूर बन रहा है. सो दैट इज इंडिकेटिंग कि उस पर्टिकुलर डेप्थ में कुछ तो है. तो अब क्या हो सकता है? पॉसिबली आइदर वो ग्राउंड वाटर और द सिंपली द मिनरलाइजेशन इज पॉसिबल. ओके, सो दैट वाज, वीडियो दिखा ना आपको या अटक गया था पूरा? ओके, चैट साइड में रखते हैं, ठीक. सो आर यू फाइन विद द एम्प्टी सर्वे? कोई डाउट? नो. ओके, सी इस चीज में आपको दो दो चार पॉइंट्स है इन चीजों में जिस पे एग्जाम में क्वेश्चंस आता है. तो ऑब्वियसली दे आर नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू कि कैसे करना है एग्जैक्टली exactly. बट कुछ चीजें, वन, दिस इज अ पैसिव मेथड. यू डू नॉट गिव एनी सिग्नल्स बाय योरसेल्फ. यू आर यूजिंग द वेरिएशन इन द मैग्नेटिक फील्ड एंड इन टर्न द चेंजिंग इलेक्ट्रिक करंट्स. ओके, तो आप अर्थ का ही डेटा यूज कर रहे हैं. यू आर नॉट गेट सेंडिंग एनी सिग्नल इनसाइड द अर्थ. Okay, so that is a passive method first of all. Secondly, you are studying both magnetic and electrical properties which are orthogonal to each other. दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर होती है, राइट. आप मैग्नेटिक फील्ड का डेटा लेते हैं एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स का डेटा लेते हैं. इन दोनों के बेसिस पे आप कंबाइन करते हैं. नाउ आई हैव अ वेरी स्मॉल क्वेश्चन फॉर दोज who have got this thing pretty nicely, that why are we considering, okay, why are we considering both magnetic and electrical if ultimately मुझे resistivity ही देखनी है,
Then why am I worrying about magnetism? मकड़न, अगर अल्टिमेटली जर अल्टिमेटली जर माझा मॅप रेझिस्टिव्हिटीचाच बनणार आहे, तर मॅग्नेटिझम आपण तिथे कशाला इन्क्लूड करतोय? कशा, व्हॉट इज द रोल ऑफ मॅग्नेटिझम इन दिस केस? आई एम ऑडिबल राइट? Nevertheless. Okay. Secondly, we are using the both magnetism and electric fields both, which are perpendicular to each other. Okay. Depth of penetration could be anywhere around 10 meters to 10,000 meters. Okay, from 10 meters to almost 10,000 meters, we can go anywhere. But the only thing that we have to consider is that, okay, generally नेचुरल सोर्स डिपेंड करता है उस जगह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है? सो वी जनरली नीड द फ्रीक्वेंसीज हायर देन 1 हर्ट्ज। ओके, 1 हर्ट्ज से भी कम फ्रीक्वेंसी रहेगी, देन वी विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग। जनरली इन दी इक्वेटर और क्लोज टू इक्वेटर, जनरली जो ट्रॉपिकल रीजन्स भी है, जहाँ पे हम लोग भी है, ओके, वहां तक वी कैन इजिली यूज दी एम्प्टी सर्वेस। ओके, बिकॉज इस एरिया में इक्वेटोरियल रीजन्स में जो लाइटनिंग डिस्चार्जेस होते हैं, जिसकी वजह से यू विल ऑलवेज हैव द फ्रीक्वेंसीज हायर देन 1 हर्ट्ज इन ऑलमोस्ट इन ऑल केसेस। बिकॉज उसके नीचे अगर हम रहेंगे, अगर हम 1 हर्ट्ज के भी नीचे रहेंगे, देन we cannot use the empty surface, because all the mathematical interpolation methods that the computer is going to use will work only when the Maxwell's equations are holding true, and Maxwell's equation hold true तभी करेगा जब उसका फ्रीक्वेंसी मिनिमम 1 हर्ट्ज के ऊपर हो, एंड 1 हर्ट्ज के ऊपर की फ्रीक्वेंसी इतना इजीली नहीं मिलती है, ठीक है? तो ये एक इसका लिमिटेशन है कि आपको, आप कहीं पर भी उठ के गए एंड एम्प्टी सर्वे चालू किया, ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है? चलो, so as I was told by the faculties that एक ये पॉइंट बचा था, and next is we have to start with the geomorphology, right? आपका आगे से भी बहुत कम दिन बचा है, राइट, एग्जाम के लिए? अच्छा, आई हैड वन स्मॉल डाउट। अच्छा ठीक है, उसको क्लास के बाद में डिस्कस कर लेंगे, नेवरदलेस। Okay, so as I have been instructed by the faculties, I have to start the geomorphology, okay, which is very important part of syllabus in this examination. Okay, geomorphology. Okay, so geomorphology का मतलब है, जियो माने obviously earth, morph meaning form, and logy is for logos, that is the science. So geomorphology is more of the subject of art stream than of the science. Okay, because geomorphology is mostly based on the observations. Okay, mostly on the basis of observations. So when we are only dealing with the observations, that is the geography. Okay, that is the geography. But it comes to geology when we are combining its origin, okay, its future, and when we are identifying its associations, okay, that is when it becomes the part of geology. Only observation is pure geography, so हमें थोड़ा सा उसके ऊपर में जाना पड़ेगा, ठीक है? So geomorphology is based on some concepts. ओके, ये हमने मोस्टली हमको लगता है बीएससीए में हम लोग पढ़ लेता है ना ये सब चीज को, बट एक बार इसे रिवाइज करना बहुत जरूरी है। ओके, आई गेस आई शुड बेटर प्रोजेक्ट द पीडीएफ ओनली, राइट? या, इट वुड बी बेटर इफ आई सिंपली प्रोजेक्ट द पीडीएफ। लिखने में टाइम बहुत जाएगा क्योंकि जस्ट सेकंड, वेयर डिड आई कीप इट? ओके, इसमें होएगा।
Okay. The screen share is loading. Okay, screen is now shared. Okay, you see the first concept of geomorphology. Hmm. The same physical processes and laws that operate today have operated throughout geological time, although not necessarily with the same intensity as now. मतलब जो आज जियोलॉजिकल प्रोसेसेस एंड जो जियोलॉजिकल प्रोसेसेस लॉज फॉलो करती है, जो आज हो रहा है, वो जियोलॉजिकल टाइम में मतलब हिस्ट्री में भी हुआ है। ठीक है, कंटिन्यूसली हुआ है। बस इसका इंटेंसिटी आज के मुकाबले कम या ज्यादा हो सकता है, बट द प्रोसेस इज वन एंड द सेम. So this principle or this concept is called as the principle of uniformitarianism. Okay, this is called as the principle of uniformitarianism. This was given by James Hutton. Okay, you know about James Hutton. He's known as the father of geology, right? James Hutton in 1785. Okay. इसे इवेंचुअली पॉपुलराइज बाय चार्ल्स लायल. इसका एक ही काम था, दूसरों का रीडिंग को अपने एडिशंस में डाल दो. राइट. सो हटन सेड द प्रेजेंट इज द की टू द पास्ट. इसका मतलब जियोलॉजी में हम कैसे यूज करेंगे? इफ वी आर सीइंग अ रिवर, ओके, आज हम देखते हैं कि रिवर जो है एक फ्लड प्लेन बनाती है. ओके, एंड वहां पे हम फ्लड प्लेन के सेडिमेंट्स के कैरेक्टर्स को स्टडी करते हैं, विच इज द मॉडर्न डे एनालॉग. ओके, so if I am getting similar sediment characteristic in some consolidated rock, then I can imagine कि this is matching with the modern day alluvial plain. Then I can say कि this rock is also a result of consolidation from the alluvial plains. So we are using today's evidences, today's visible or today's present features, and comparing them with the ancient rocks and interpreting the process. Right? Similarly, we go to the delta. Okay, we know about delta, that delta is characteristically having coarsening upwards sequence. Right? Generally हमारे यहाँ नॉर्मल सीक्वेंस होता है ना, ग्रेडिंग जनरली नॉर्मल होती है, फाइनिंग अपवर्ड सीक्वेंस होता है, बट डेल्टा शोज ऑपोजिट. राइट, कोर्सनिंग अपवर्ड सीक्वेंस. राइट. सो ये मुझे कैसे पता चला? I went to some of the mouths of the rivers and identified that the sediment character is different. Very close to the mouth of the river, I have fine grained sediment, and in the distal delta facies, I am having coarse grains. Okay, so I could understand that this is the coarsening upward sequence. So similarly, if I get a coarsening upward sequence in an ancient rock sequence, then I can say that this is a result of some deltaic process. Okay, so ये कॉन्सेप्ट का सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेशन ये है कि हम सेडिमेंट्री रॉक्स को उनके ओरिजिन के बारे में स्टडी कर सकते हैं इफ वी आर स्टडिंग दी प्रोसेसेस एंड लॉज दॅट आर ऑपरेटिंग टुडे. आज काय प्रोसेसेस चालू आहेत आणि काय लॉज तिथे फॉलो केल्या जात आहेत. लॉज म्हणजे ऑब्व्हियसली नॉट द लीगल लॉज, द फिजिकल अँड केमिकल लॉज जे आज ऑपरेट होत आहेत, त्या सेम प्रोसेसची स्टडी जर का आपण आज केली आणि त्याला एन्शियंट रॉक्स सोबत कम्पेअर केलं, तर आपल्याला दोन्ही प्रोसेसेसमध्ये सिमिलॅरिटी मिळू शकते. फक्त त्याची इंटेन्सिटी कमी किंवा जास्त असू शकते. ठीक आहे. नाउ नेक्स्ट इम्पॉर्टंट कॉन्सेप्ट इज the concept number 2, which says the geologic structure is dominant control factor in the evolution of landform and is reflected in them. Right, this is very obvious. Okay, very obvious that if the rock is folded or faulted, then the landform will be evolved only on the basis of geologic structure. Not only, but mostly it will be controlling the complete shape of the landform. if the rock, if the area is, sorry मैं ये यूज कर दिया, if there has been some compression in the area, okay, compression है, तो वहां पे आपको क्या मिलेगा? एक folded mountain belt मिलेगा. Right, so you will get this geomorphology in the form of what? In the form of high hills, for example Himalaya. Okay, in the form of Himalaya. So that is the control of structure on the landforms. मतलब जो भी जियोलॉजिक स्ट्रक्चर रहेगा वो बनने वाले जियोमॉर्फिक लैंडफॉर्म को बहुत लार्जली कंट्रोल करेगा. ऑल्सो उसके शेप में ये दिखेगा. फॉर एन एग्जाम्पल, आई विल गिव यू अ क्विक एग्जाम्पल. ओके, इसको देखने में मजा आएगा. हाँ,
maps. Let's see the Google Maps. Okay, let's see the Google Maps. ओके, स्क्रीन आ गया है. ओके, now you observe here, just trace the boundary of this landform and you can clearly say that this is a plateau, right? ये clearly दिख रहा है कि this is a plateau, right? Now can you tell me what stratigraphic unit this could be? क्या stratigraphic unit हो सकता है ये? कोई आइडिया? And not just here, not just here, you go anywhere in this region. Okay, this is Ranthambore आ गया ना. Okay, that is the boundary. ये देखिए, आप इसको देखते जाइए, जहाँ जितना आप आगे जाते रहेंगे आपको ये सेम चीज मिलता रहेगा. हर जगह आपको प्लेटो मिल रहा है. कैन यू गेस ये जियोलॉजिकली कौन सा फॉर्मेशन हो, कौन सा ग्रुप, सुपर ग्रुप होगा ये? That is basically the Vindhyan supergroup, right? That is the Vindhyan supergroup. Similarly, let's get out of the Madhya Pradesh and let's go to South India. Okay, South India. Let's go to Kadapa. Let's go to Kadapa area. It's taking a little time to load. Where is the Gandikota? Hmm. Uh, Give me one more minute. I'm searching for a best one. Yashwant Palem. No, there is no Yashwant Palem. छोटा है. Yes, you see here now. Here also, what you can see in this area, you can see this Kunu Kuntla area, right? Here also, if I'm tracing the boundary, okay, one can easily say that this is also a plateau area, right? This is also a plateau area. Clearly दिख रहा है that this is very much horizontal. Okay,
यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, दीज आर ऑल नथिंग बट स्मॉल मेसा स्ट्रक्चर्स. ओके, मेसा लाइक स्ट्रक्चर्स. ओके, सो यहाँ पर भी आपको मिल रहा है, दिस इज द कडप्पा एरिया, राइट, कडप्पा सुपर ग्रुप वाला एरिया. थोड़ा सा अगर इसमें हम नॉर्थ में अगर बढ़ते हैं, ओके, और लेट्स गो टू छत्तीसगढ़. इवन इन छत्तीसगढ़ यू आर गोइंग टू गेट वेरी सिमिलर. छत्तीसगढ़ में एक ही प्रॉब्लम है कि थोड़ा सा फॉरेस्ट कवर ज्यादा होने से मोस्टली तो आपको कंसील्ड दिखेगा. ओके, बट इन सम एरियाज यू कैन आइडेंटिफाई. Okay, even in Chhattisgarh, you will find there are plateaus. Okay, and plateaus are nothing but the geomorphic features, right? So छत्तीसगढ़ में भी आपको बहुत सारा प्लेटो स्ट्रक्चर मिलेगा, आपको कडप्पा में भी प्लेटो स्ट्रक्चर मिलेगा, आपको विंध्यन में भी प्लेटो स्ट्रक्चर मिलेगा. ये क्यों? कैन यू गेस? Because all these rocks are nothing but the Purana formations, Proterozoic sedimentary rocks, which are practically undeformed. Okay, which are practically undeformed. सो नॉट अनडिफॉर्म होने के कारण जो उसका बेडिंग प्लेन्स है, जो उसका स्ट्रक्चर है, ओके, दैट इज ऑलमोस्ट अनडिस्टर्ब. दैट्स व्हाई यू हैव वेरी हॉरिजॉन्टल, ऑलमोस्ट अनडिफॉर्म्ड हॉरिजॉन्टल बेडिंग प्लेन्स. दैट इज व्हाई you are having the mesa structures or the plateau structure or the bits. Okay, if it was inclined, then you would get the geomorphology like you get in Himalayas. Okay, so that's how structure is controlled by structure. The geomorphology is controlled by the geologic structure of that area, dominantly by the structure of this area. Okay, the third concept of geomorphology is, to a large degree, the Earth's surface possesses relief because the geomorphic processes operate at differential rates. Very simple concept this is. Okay, ये concept क्या कहती है? You know, अर्थ का जो सरफेस है वो हर जगह इक्वल स्लोप नहीं है. कहीं पे स्टीप स्लोप है, कहीं पे जेंटल स्लोप है, कहीं पे नो स्लोप, एंड कहीं पे एकदम वर्टिकल ड्रॉप भी है, राइट? सो दे आर, द कंसेप्ट सेज कि ये जो रिलीफ में इतना डिफरेंसेस आती है, राइट, जो रिलीज में जो हाइट्स में या फिर स्लोप्स में डिफरेंस आता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंशियल रेट्स इन द जियोमॉर्फिक प्रोसेस. कहीं पे अगर रिवर का एक्शन बहुत फास्ट है, ओके, देन यू विल गेट वी शेप्ड वैलीज, राइट. अगर रिवर का प्रोसेस बहुत स्लो है, रिवर का वेलोसिटी बहुत स्लो है, सो यू विल गेट जनरली द यू शेप्ड वैली. Okay, so it is saying that Earth's surface possesses relief because of the geomorphic process that is operating at the differential rate. अगर ऐसा नहीं होता तो पूरा डेक्कन ट्रैप्स का हाइट एक ही होता, बट ऐसा नहीं है. कहीं पे ऊपर है, कहीं पे नीचे है, तो पहाड़ कभी बचता ही नहीं. ओके, अगर आप महाबलेश्वर में जाएंगे तो यू विल बी एबल टू सी दैट द हिल्स आर मेड अप ऑफ बसाल्ट, बट व्हाट इज द बेस ग्राउंड मेड अप ऑफ? दैट इज ऑल्सो बसाल्ट, राइट. बट ओनली बिकॉज द जियोमॉर्फिक प्रोसेस, मतलब ये जो इरोजनल एजेंसीज है, इनके डिफरेंशियल रेट के होने के वजह से अर्थ में आपको रिलीफ मिलती है, बट टू अ लार्ज डिग्री, नॉट ऑलवेज, नॉट कंपल्सरीली. इस चीज को भी ध्यान देना है, ठीक है. देन द फोर्थ कॉन्सेप्ट, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, इट सेड्स दैट the geomorphic processes leave their distinctive imprint upon the landform, and each geomorphic process develops its own characteristic assemblage of landform. ठीक आहे, याला एकदा समजून घेऊ आपल्या भाषेत. जिओमॉर्फिक प्रोसेस कुठल्याही लँडफॉर्मवर आपली इम्प्रिंट, म्हणजे आपली छाप सोडून जाते, आणि प्रत्येक जिओमॉर्फिक प्रोसेसचं आपला एक लँडफॉर्म्सचा एक ग्रुप असतो जो तो बनवतो. तो लँडफॉर्म दुसरी कोणती एजन्सी नाही बनवू शकणार. फॉर एन एक्झाम्पल, जर का मी विंड कन्सिडर करतोय, हा, जर मी विंड कन्सिडर करतो तर देअर इज दिस, परत अल्टिमेटली एक फीचर कॉल्ड एज व्हेंटिफॅक्ट्स, राइट. व्हेंटिफॅक्ट्स, you will find the rocks having crystal like faces. Okay, you will have rocks having crystal like faces. So हे जे व्हेंटिफॅक्ट्स असतात, हे आपल्याला विंड मुळेच मिळतात. व्हेंटिफॅक्ट्स विल नेव्हर बी फाउंड बिकॉज ऑफ, लेट्स से, द रिव्हर्स. Okay, you will never get व्हेंटिफॅक्ट्स बिकॉज ऑफ रिव्हर. that is characteristic of the wind only. ओके, सो दोन गोष्टी झाल्या. कशा? कुठली जिओमॉर्फिक प्रोसेस आहे ती आपले स्पेसिफिक लँडफॉर्म बनवेल, ओके,
आणि त्या लँडफॉर्म मध्ये त्या प्रोसेसचे एव्हिडन्सेस मिळतील, म्हणजे वाईस वर्सा. ठीक आहे. सो जो लँडफॉर्म रिव्हर बनवते तो लँडफॉर्म विंड नाही बनवू शकत, आणि तोच लँडफॉर्म ओशन नाही बनवू शकणार, आणि तोच लँडफॉर्म ग्लेशियर पण नाही बनवू शकणार. ठीक आहे. प्रत्येक प्रोसेसचे आपले स्वतःचे कॅरेक्टरिस्टिक ॲसेम्बलेज ऑफ लँडफॉर्म आहेत. ठीक आहे. अगेन इथे एक वर्ड यूज केलेला आहे, ॲसेम्बलेज, बिकॉज सम प्लेसेस डेल्टा मे अपियर लाईक डिस्टल फॅन फेसिस. ओके, डिस्टल एल्युवियल फैन फेसिस. ओके, देन वी कैन से कि भैया डेल्टा भी तो वही बनाता है एंड रिवर भी वही बनाती है, तो सॉरी ग्लेशियर भी वही बनाती है, तो ये तो सेम हो गए. नहीं, सेम नहीं हुए. वी आर युझिंग द वर्ड असेंबलेज. ओके, असेंबलेज म्हणजे डेल्टाच्या सोबत मध्ये मला मग बाकीचेही लँडफॉर्म्स मी कन्सिडर करणार. ओके, नॉट जस्ट वन सिंगल लँडफॉर्म, वी आर कन्सिडरिंग दी असेंबलेज ऑफ लँडफॉर्म्स. The fifth concept is, as the different erosion agents act upon the earth's surface, there is produced an orderly sequence of landforms. ओके, आता या गोष्टीला आपण वेगळ्या प्रकारे कसं म्हणू, having distinctive characteristics at successive stages of their development. आपल्याला सगळ्यांना रिव्हर बद्दल माहिती आहे, रिव्हरचे 3 स्टेजेस असतात, राईट. One is the youthful stage. Okay, second is the mature stage, and the third is the old stage. If you see the valley profile in youthful stage, you will have the V-shaped valleys. Okay, in the mature stage, you will generally have a river valley like this, and in the old stage, you will have a river valley which is very shallow and very wide, right? So the concept, this fifth concept of geomorphology, it says that as the different erosion agents act upon the earth's surface, there is produced an orderly sequence of landform. मतलब आपका लैंडफॉर्म, ओके, आपका एजेंसी किस स्टेज पर है उसके हिसाब से लैंडफॉर्म भी बदलेगा. ओके, सो हर जगह रिवर का वैली या फिर रिवर का वैली एक जगह एक जैसा नहीं मिलेगा. ओके, हर जगह उसका कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट रहेगा. ओके, अगर ग्लेशियर अगर होगा, इफ यू विल सी ग्लेशियर, इफ इट इज मूविंग, इफ इट इज इन द हायर एरियाज, हायर एलिवेशंस, then you do not get the moraines. Okay, where you will get the moraines? You will get the moraines only below the snow line, either below the snow line or at the lower elevations. Okay, similarly the sea cliffs, you will get sea cliffs only at the outer parts of the tidal flats, not in the littoral zones. ओके, सो कुठल्या स्टेजवर आहे तुमची एजन्सी, त्याच्या अकॉर्डिंगली लँडफॉर्म सुद्धा वेगळा असेल. ठीक आहे. Sixth and most important concept. Okay, this holds true not only for geomorphology but for everything in sciences. Complexity of geomorphic evolution is more common than simplicity. म्हणजे कॉम्प्लेक्सिटी इज मच कॉमन दॅन दी सिम्प्लिसिटी. म्हणजे जेवढ्या सिम्पली आपण व्ही शेपेड व्हॅली, देन यू शेपेड व्हॅली अँड फ्लॅट व्हॅली असे टेक्स्टबुक्स मध्ये बघतो, तेवढं सिम्पल लँडफॉर्म नसतो. हे का बरं असं असेल? कॅन यू टेल मी? कॉम्प्लेक्सिटी कुठून येते? बिकॉज जेव्हा आपण टेक्स्टबुक एक्झाम्पल्स बघतो किंवा आपण कुठल्या गोष्टीला जनरलाइज करतो, त्यावेळेस वी कॅन नॉट टेक अन अकाउंट ऑफ एव्हरी सिंगल थिंग. बट जिओमॉर्फिक इव्हॉल्युशन, okay, this geomorphic evolution, it is controlled by what? One, it is controlled by the structure. Okay, secondly, it is controlled by the lithology. Okay, third, it is controlled by टाइम. कितना टाइम आपने दिया है, फॉर 1 मिलियन ईयर में बना है या 10 मिलियन ईयर में बना है या 60 मिलियन ईयर्स में बना है, तो अकॉर्डिंगली लैंडफॉर्म में कॉम्प्लेक्सिटी आएगी. फोर्थ, रेजुवेनेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट. ओके, रेजुवेनेशन मतलब एक बार रिवर ने अपने बेस लेवल ऑफ इरोजन तक अपने बेडरॉक को इरोड कर लिया, बट देन देयर वाज द ग्लोबल सी लेवल राइज और सी लेवल फॉल. Okay, global sea level fall. Now what will happen? Now this river can go even deeper, and then everything will become complex and complex. Okay, so because we have multiple
things that are acting together. Okay, so that's why complexity becomes much more common than the simplicity, because what we simply expect or we imagine, we cannot consider the effect of structure, lithology, time, rejuvenation, etc. all together. Okay, but in nature everything is working simultaneously. Okay, because of which the complexity is much more common. The seventh concept is, there are 9 concepts, huh? So please have some patience. The seventh concept says little of the earth's topography is older than tertiary and most of it is no older than the Pleistocene. Okay, मतलब अर्थ की टोपोग्राफी का थोड़ा सा ही हिस्सा है जो टर्शरी से भी पुराना है. टोपोग्राफी का मतलब अर्थ के टॉप मोस्ट लेयर जो सॉइल रहेगा आपका वो, या फिर कोई अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स रहेगा उनका एज. ठीक है, डू नॉट गो फॉर टू द बेड रॉक. बेड रॉक तो ऑब्वियसली आर्कियन भी हो सकता है. ठीक है, सो अर्थ की टोपोग्राफी का थोड़ा सा ही हिस्सा है जो टर्शरी से पुराना हो, एंड कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जो प्लीस्टोसिन से भी पुराना हो. अब इसका क्या रीजन हो सकता है? ऑब्वियसली जो प्रेजेंट डे इरोजन और डिपोजिशन हो रहा है वो अर्थ की टोपोग्राफी के ऊपर में एक लेयर बना रहा है, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट दैट लेयर विच इज डायरेक्टली अवेलेबल फॉर अस एज द टोपोग्राफी. राइट, जो हम देख सकते हैं वो मैक्सिमम तो टर्सरी के यंगर ही है. टर्सरी से ज्यादा ओल्डर आपको रेयरली ही मिलेगा, एंड प्लीस्टोसिन से पुराना तो कभी भी नहीं मिलेगा. Okay, so except for the places where there are Archean or simply the bedrock, okay, only वो places छोड़ के जहां पर bedrock outcrop कर रहा है, वो छोड़ के बाकी सारा एरिया टर्शरी से ओल्डर नहीं रहता है. ओके, इसका मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब सिंपली ये है दैट द geomorphic processes are occurring almost everywhere on the earth. Okay, where there is nothing, there also geomorphic process is working. Okay, now the 8th and 9th processes were recently added. Okay, recently matlab some 20-30 years ago, huh? The proper interpretation of present day landscapes. Okay, मतलब आज के दिन में जो लैंडस्केप्स है, जो लैंडफॉर्म्स है, उनका प्रॉपर इंटरप्रिटेशन इज इम्पॉसिबल without a full appreciation of manifold influences of geologic and climatic changes during the Pleistocene. मतलब प्लीस्टोसीन में जो एक्टिविटीज हुई है, अब ऑब्वियसली वी नो प्लीस्टोसीन का सबसे मेजर इवेंट क्या था? दैट वाज द ग्लेशिएशन, राइट, द ग्लोबल ग्लेशिएशन, स्नोफॉल जब हुआ था. राइट, सो बेसिकली अगर आप किसी प्रेजेंट डे में किसी जियोमॉर्फिक फीचर को इंटरप्रेट करना चाह रहे हैं, तो इट इज इम्पॉसिबल टू डू इट कंप्लीटली और प्रॉपरली विदाउट कंसिडरिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ प्लीस्टोसीन. प्लीस्टोसीन में क्या हुआ था उसका इफेक्ट स्टडी नहीं करोगे तो आप किसी भी प्रेजेंट डे लैंडस्केप का प्रॉपर इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते, बिकॉज यू आर मिसिंग आउट ऑन समथिंग दैट हैव अफेक्टेड द होल अर्थ. बिकॉज प्लीस्टोसीन में तो ऑलमोस्ट पूरा ही अर्थ ग्लेशियर एज में चला गया था, आइस एज में चला गया था. राइट, सो अगर आप इस प्लीस्टोसीन में जो क्लाइमेटिक एंड जियोलॉजिक चेंजेस हुए हैं अगर इनको कंसिडर नहीं करते हैं तो आपका लैंडस्केप का इंटरप्रिटेशन विल ऑलवेज बी इम्प्रॉपर और इनकम्प्लीट. वेरी सिंपल. देन वी कम टू द लास्ट कॉन्सेप्ट. An appreciation of world climates is necessary to a proper understanding of varying importance of different geomorphic process. मतलब if you are trying to understand the geomorphic process, then study of world climates is really important. Okay, world climate का importance है geomorphic processes में. अब ये क्या क्यों हो सकता है? For an example, I am working somewhere in let's say कानपुर. ओके, उत्तर प्रदेश में मैं कानपुर में कहीं पे काम कर रहा है. ओके, क्या काम कर रहा हूं मैं? गंगा प्लेन्स को स्टडी कर रहा हूँ. ओके, सो लेट्स से माय जियोमॉर्फिक प्रोसेस इज द रिवर. ओके, गंगा रिवर. सो गंगा रिवर में अगर मैं जियोमॉर्फिक प्रोसेस स्टडी करना चाहता हूँ देन आई हैव टू कंसिडर द इफेक्ट ऑफ मॉनसून्स. राइट, I cannot do it without monsoons because monsoons will be having maximum rainfall in the Ganga and hence the volume might change and the geomorphic process might accelerate. Okay, so अगर आपको किसी जियोमॉर्फिक प्रोसेस को स्टडी करना है
then you have to study the world climates as well. You cannot do the geomorphic processes without studying the world climates. Okay, so those are the 9 important concepts in geomorphology. Okay, and as I have been informed, tomorrow your regular faculties will be नहीं करेंगे. Okay, ठीक है. As I have been informed by your faculties that from tomorrow they will be starting with geomorphology. Okay, and mostly the relation between the geomorphology and the lithology, they will be starting with that, and eventually rest syllabus of the geomorphology. So, do we have any doubts from what part we have studied today? Okay, in that case, we'll stop here today and meet tomorrow at 6:30 a.m. Okay, thank you. Good night.